students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, in today's class, our today's topic is queries, forms and reports in MS Access. तो MS Access के बेसिक फीचर्स के बारे में हम जान चुके हैं. अब हम इसके एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की. Things to learn: working with queries, working with forms, working with reports and setting a relationship between tables. Robo, in the previous chapter you have studied about MS Access and its various objects. Adya: yes Robo, I want to learn more. Robo: okay Adya, in this chapter you will study about other objects like queries, forms and reports. So let's start the chapter. Working with queries. Query is a way of retrieving the information from one or more tables. अब जैसे आप कहीं जाते हैं, होटल्स वगैरह पे जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे क्वेरीज करते हैं. ठीक है, क्वेरीज जो होती है एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने का. जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के ऊपर, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको स्कूल के स्ट्रक्चर के ऊपर, या क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जाती हैं, तो आप वहाँ पे क्वेरीज जो हैं जनरेट करते हैं. Running a query is like asking a detailed question to the database. In Access, usually query is created for viewing, changing and for defining a specific search conditions to find exactly the data. तो क्वेरी जो होती है ये आपके एक्सेस में भी यूजुअली क्रिएट की जाती है व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए और किसी स्पेसिफिक सर्च को डिफाइन करने के लिए. नाउ क्रिएटिंग अ क्वेरी. MS Access provides 4 types of queries: a select query, update query, cross-tab query and append query. Here we will learn to create the simplest type of query, i.e. the select query. SS provides 2 ways to create select query by using Query Wizard and Query Design. These commands are present in the queries group of क्रिएट टैब. अब हम जान लेते हैं कि क्वेरीज को क्रिएट कैसे किया जाता है. MS Access वैसे तो आपको बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो देता है क्रिएट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, क्रॉस टैब क्वेरी है एंड अपेंड क्वेरी है. लेकिन यहाँ पे हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सेलेक्ट क्वेरी. अब आपकी सेलेक्ट क्वेरी जो है ये भी 2 टाइप से क्रिएट की जा सकती है, बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन. Using Query Wizard, the Query Wizard allows us to create a query object based on a single table or multiple tables through simple steps. Here we will learn to create a query that displays only the name of students and their age from the S_ table. The steps are as follows. तो आपका जो क्वेरी विजार्ड होता है ये आपको अलाउ करता है ताकि आप क्वेरी को क्रिएट कर सके बेस्ड ऑन अ सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल. मतलब आप सिंगल टेबल से भी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स के थ्रू. अब यहाँ पे स्टेप्स हमें दिए गए हैं. Step 1, open the required database and click on Create tab. In the Queries group, click on the Query Wizard button. The new query dialog window will open. Step 2, select the Simple Query Wizard option and click on the OK button. The Simple Query Wizard dialog window will open. Step 3, click on the Tables Queries drop-down arrow and select the table you want for your query from the drop-down list. Here we have selected the S_ table. Select the S_name field from the available field. Select and selection and click on the button to transfer it into the selected fields section. B, similarly transfer the field age also into the selected field section and click on the next button. Step 4, Simple Query Wizard dialog box opens. Click on next button. Step 5, in the next steps, enter a name for the query and select the open the query to view information option and click on finish. तो यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है. पहले आपको रिक्वायर्ड डाटा को ओपन करना है, ठीक है, जिससे भी आप क्वेरी निकालना चाहते हैं. इसके बाद आप क्रिएट टैब पे जाएंगे. क्वेरीज ग्रुप में आप क्लिक करेंगे क्वेरी विजार्ड बटन पे. न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेबल्स या फिर क्वेरीज ड्रॉप डाउन एरो पे एंड सेलेक्ट करना है आपको टेबल जिसमें से आप क्वेरी निकालना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे फिर आप ऑप्शंस को चूज़ करेंगे.
इसके बाद आप सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप एंटर करेंगे नेम फॉर द क्वेरी एंड सेलेक्ट करेंगे ओपन द क्वेरी टू व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। Now using query design, design view gives us more control over creating a query. The steps to create a query in query design are as follows. Step 1, open the required database. Open the create tab and in queries group click on the query design button. Step 2, the show table dialog box is displayed from which you can select tables or queries to add to the query design. Step 3, select the table from show table dialog box on which you would like to run a query. Click on the add button. Step 4, the selected table will appear as a small window in the upper section of the query design, i.e. object relationship pan. अब हम जान लेते हैं कि क्वेरी डिज़ाइन यूज़ करके आप कैसे क्वेरीज जनरेट करते हो। डिज़ाइन व्यू जो होता है ये आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है ओवर क्रिएटिंग अ क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। आपको रिक्वायर्ड डेटाबेस सबसे पहले ओपन कर लेना है, देन ओपन करना है आपको क्रिएट टैब एंड आप क्वेरीज ग्रुप में जाकर क्वेरीज डिज़ाइन बटन को चूज़ करेंगे, उसे क्लिक कर लेंगे। फिर शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो है डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल्स और क्वेरीज टू ऐड द क्वेरी डिज़ाइन। इसके बाद आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से आप शो टेबल डायलॉग बॉक्स में से आप अपनी क्वेरी को रन करेंगे। इसके बाद आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड टेबल जो है वो अपीयर हो जाएगी ऐसा स्मॉल विंडो, कहाँ पे, अपर सेक्शन में ऑफ द क्वेरी। ठीक है, नाउ द क्वेरी विंडो। The query window is divided into two pans. The top pan called object relationship pan displays the table selected for the query. The bottom pan called design grid is used to add fields to the query and also specify the criteria. Let us understand the design grid. The design grid shows the following headings. Field. The first rows of the design grid displays the selected field names for the table. Table, it displays the name of the existing table. Short, this property is used to filter data in ascending or descending order. It is optional. Show, it displays a check mark which indicates that this field will be visible when the query is executed. Criteria, it contains the condition on the basis of which the records will be filtered in the query output. और दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरियाज। अब आपने अपनी क्वेरी जो है वो जनरेट कर ली है। अब आपके सामने क्या हो गया, क्वेरी विंडो जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो विंडो है वो दो पैन में आपको विजिबल नज़र होगा या डिवाइडेड होगा। ठीक है, टॉप पैन जो होगा जिसे हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन कहते हैं, ये डिस्प्ले करता है टेबल्स को, टेबल सेलेक्टेड फॉर क्वेरी। बॉटम पैन जो है ये डिज़ाइन ग्रिड होता है जो कि यूज़ किया जाता है फील्ड्स को ऐड करने के लिए टू द क्वेरीज और किसी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन ग्रिड को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमें हेडिंग्स दी गई हैं, जैसे कि फील्ड, ये आपकी फर्स्ट रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड होती है जो कि डिस्प्ले करती है सेलेक्टेड फील्ड नेम को फ्रॉम द टेबल। टेबल जो है ये आपकी एग्जिस्टिंग टेबल के नाम को डिस्प्ले करती है। शॉर्ट, ये जो प्रॉपर्टी है ये डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। शो जो होता है ये डिस्प्ले करता है एक चेक मार्क जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो फील्ड है ये विजिबल होगी जब आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट की जाएगी। क्राइटेरिया, ये कंटेन करता है आपकी कंडीशन को ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें आपके डेटाज या रिकॉर्ड्स जो हैं वो फिल्टर किए जाते हैं क्वेरीज आउटपुट को, और ये आपकी प्रॉपर्टी होती है जो कि मल्टीपल क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। Now specifying simple criteria in a query, the data will get filtered according to the specified criteria in the query output. Let us now set a condition in the field age to make sure that the query table displays only those where the age is either equal to or greater than 13. The steps to do it are given below. Step 1, open the required database and open the query table created in the previous section in the design view. Step 2, under the field age in the criteria row, enter the condition less than equal to 13 as shown. Step 3, save the changes made to the query table by clicking at the save button on the quick access toolbar. Step 4, close the design view. Double click on the query icon in the navigation pan to run the query. अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं सिंपल क्राइटेरियाज को क्वेरी में। डेटा जो होते हैं ये आपके फिल्टर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि आपके क्वेरी आउटपुट में होते हैं।
तो इनको हम जान लेते हैं कि कैसे इन्हें सेट किया जाता है एक फील्ड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन कर लेना है रिक्वायर्ड डेटाबेस को, फिर आपको ओपन कर लेना है क्वेरी टेबल को, और जैसे आपने पिछले डिज़ाइन व्यू में आपने क्रिएट की थी। इसके बाद आप अंडर द फील्ड एज इन द क्राइटेरिया में जाएंगे एंड आप अपनी कंडीशन को एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने जो सेव किए हुए चेंजेस हैं उनको सेव कर लेंगे टू द क्वेरी टेबल बाय क्लिकिंग सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद आप डिज़ाइन व्यू को क्लोज कर लेंगे। जब आप अपनी क्वेरी पे डबल क्लिक करेंगे इन द नेविगेशन पैन तो ये क्वेरी को रन करने लगेगा। स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया, to specify multiple criteria in a query follow these steps. Step 1 is suppose you want to see the records of class 6 as well as class 7. Move the cursor to the criteria row and type the condition equal to 6 in the class field. Type the second condition equal to 7th in or row of the same column. Step 2, save the query and click on the close button. Step 3, now run the query by double clicking on the query name in navigation pan and observe the output, or click the run button from the results group in the design tab. अब आपको क्या करना है, मल्टीपल क्राइटेरियाज को सेट करना है, ठीक है। सपोज आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं क्लास 6 के और क्लास 7 के। आपको अपना कर्सर जो है उस क्राइटेरिया रो में मूव करना है और टाइप करना है कंडीशन इक्वल टू 6। उसके बाद आप क्लास फील्ड में जब से टाइप कर लेंगे आपको सेकंड कंडीशन टाइप करनी है सेम कॉलम में, ठीक है। इसके बाद आप सेव करेंगे अपनी क्वेरी को एंड क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी क्वेरी को रन करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन द क्वेरी नेम। नाउ वर्किंग विद फॉर्म्स। Form is an object in a desktop database designed primarily for data input or display or for control of application execution. You can use forms to customize the presentation of data that your application extracts from queries or tables. Forms are used for entering, modifying, and reviewing. SS provides three main views in which a form is displayed. Form view is used to enter, edit, and view data. Design view is used to adjust the design of your form. It gives you a more detailed view of the structure of a form, such as header, detail, and footer sections. Layout view is used to change the appearance and size of various controls of a form. तो फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म्स आपके ऑब्जेक्ट होते हैं इन अ डेस्कटॉप डेटाबेस जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं प्राइमरीली आपके डेटा इनपुट या फिर उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। आप इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएस जो है ये प्रोवाइड करता है थ्री मेन व्यूज़ जिसमें आप अपने फॉर्म को डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला होता है आपका फॉर्म व्यू जो कि आप यूज़ करते हो एंटर, एडिट एंड डेटा व्यू करने के लिए। डिज़ाइन व्यू जो होता है ये आपके फॉर्म के डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा डिटेल देता है ताकि आप फॉर्म के स्ट्रक्चर को, उसके हेडर, डिटेल एंड फुटर सेक्शन को और अच्छे से समझ सकें। लेआउट व्यू जो होता है ये आपके फॉर्म की अपीयरेंस, उसके साइज़, वेरियस कंट्रोल्स को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। Next is creating a form. To create a form, the steps are as follows. Step 1, select a table or a query in the navigation pane that you want to use for the form. Step 2, click on the Create tab in the Forms group. Select the Form button. A new form will open up in the Layout view. When a new form is created, it by default opens in layout view. Step 3, you can click on the various fields and drag them to change their position on the form. In this way, you can change the appearance of the form in the layout view. Step 4, click on the save button on the quick access toolbar and save the form by any name as you like. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करना है या फिर आपको क्वेरी सेलेक्ट करनी है नेविगेशन पैन में से जिसको आप क्या करना चाहते हैं, फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं। देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे, फॉर्म को उसमें आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म बटन को, आपके सामने न्यू फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा लेआउट व्यू में। देन आप क्या करेंगे, आप क्लिक कर सकते हैं इन द वेरियस फील्ड एंड ड्रैग करके उनकी पोजीशन को आप फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं कि उसका जो लेआउट है वो कैसा दिखेगा।
फिर जब आप सारे चेंजेस कर लेंगे तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार एंड आपका जो फॉर्म है वो उस नाम से सेव हो जाएगा जिस नाम से आप उसे सेव करना चाहेंगे. You should know after saving a form object, its icon will appear in the navigation pan. You can double click on this icon to open the form anytime later. आप अपने फॉर्म ऑब्जेक्ट को जब सेव कर लेते हैं तो उसका जो एक आइकन होता है वो आपके नेविगेशन पैन में नज़र आता है. इसको आप कभी भी ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके. Now navigating between records, the form window behaves like a user-friendly display. We can view and move through the various records by using the different navigation buttons situated at the bottom of the form window. तो आपका जो फॉर्म विंडो होता है ये एक यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. आप व्यू कर सकते हो अपने वेरियस रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म्स को इन डिफरेंट नेविगेशन बटन्स जो कि आपके फॉर्म विंडो के बॉटम में सिचुएटेड होते हैं. Editing records through a form. To edit record using the form, we need to view in the form view. In the form view, we can easily edit the existing records by making them active on the screen, making the required changes and then clicking on the next button. The steps to edit the records are given below. Step 1. Open the Home tab and click on the View button, drop down arrow, select the form view from the list displayed. Step 2, click to bring the cursor in the text box and make the necessary changes to the data. Here we have change s_name from Sangini to Sarthak. Step 3, move to the data in the next field by pressing the tab key or by clicking with the mouse. Step 4, save the changes by clicking on the save button from the quick access toolbar. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे आप रिकॉर्ड्स को एडिट करते हो थ्रू अ फॉर्म. किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए आप फॉर्म को यूज़ करते हो. ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्म मतलब आपके पास फॉर्म जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए. फॉर्म व्यू जो है ये आप इजीली यूज़ करते हो अपने रिकॉर्ड्स को एडिट करने के लिए. ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है इनको आप एडिट कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो. तो जो भी रिक्वायर्ड आप चेंजेस इसमें लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. फिर आप जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने रिकॉर्ड्स को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं. अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं. आपको होम टैब ओपन कर लेना है, देन आपको क्लिक करना है व्यू बटन पे. आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे. फिर आप फॉर्म व्यू को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ब्रिंग द कर्सर इन द नेक्स्ट बॉक्स. इसके बाद आप यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस करेंगे अपने डेटा में. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको संगिनी से सार्थक नाम जो है चेंज करना है तो वो आपको दिखाया गया है. इसके बाद अपने डेटा को नेक्स्ट फील्ड में मूव करेंगे बाय प्रेसिंग द टैब की, या फिर आप माउस से उस एरिया पे जाकर के डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद आप अपने चेंजेस को सेव करेंगे फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार. You should know, be careful while changing data in a form as these changes will be reflected in the table that is linked to that form. तो अपने जो आपको डेटाज भरने हैं फॉर्म में बहुत ही ध्यान से भरने हैं, क्योंकि आपके जो चेंजेस आप करते हो वो आपके टेबल में दिखते हैं जो कि आपके फॉर्म के साथ लिंक्ड किए हुए होते हैं. Working with reports, report is another useful feature of the SS. By using report, data can be organized and summarized for the printing and viewing. SS provides the following 4 views when you create report. अब रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं. रिपोर्ट्स आपकी एक और फीचर होता है एसएस का. रिपोर्ट को यूज़ करके आप अपने डेटाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इनको समराइज कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए या फिर देखने के लिए. Creating a report using the report wizard. Let us learn to create report in MS Access to display the records of the marks table. Step 1, open the required database. Click on the create tab. Step 2, in the reports group, click on the report wizard button to start the report wizard. Step 3, in the first step of the report wizard, you will be asked to select the table, query and the fields that you want to display in the report. Select the as_table, select the fields from under the available fields section as shown in the picture by first selecting the field and then clicking on the button to transfer the selected fields section. To transfer all the fields together, you can click on the button in the report wizard.
When you have transferred all the fields that you want to display in the report, click on the next button to move over the next step of report wizard. Step 4, the next screen will ask you to group data on the basis of any field. Since you do not want to group data, simply click on the next button to go to the next step of report wizard. Step 5, select the section from the first drop-down list, click on next. Step 6, select the tabular layout and click on the next button. Step 7, click on the format from the list of styles and click on the next button again. अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे आप रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हो यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। ठीक है, इसके लिए आप रिक्वायर्ड डेटा को ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्रिएट टैब पे जाएंगे, देन रिपोर्ट्स ग्रुप में आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट विजार्ड बटन पे टू स्टार्ट द रिपोर्ट विजार्ड। देन आप फर्स्ट स्टेप में रिपोर्ट विजार्ड के यू विल बी आस्क्ड टू सेलेक्ट द टेबल। आपसे टेबल और क्वेरी सेलेक्ट करने को पूछा जाएगा। इसमें आपको रिक्वायर्ड टेबल को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है S_टेबल। इसके बाद आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपको अवेलेबल फील्ड सेक्शन के अंडर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फील्ड्स को टुगेदर, तो आप इस तरीके से बटन जो है रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक कर सकते हैं। जब आप अपनी सारी की सारी फील्ड जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे जो कि आप रिपोर्ट्स में दिखाना चाहते हैं, इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएं ऑफ द रिपोर्ट विजार्ड। आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो आपको पूछेगी ताकि आप अपने डेटा को ग्रुप कर लें ऑन द बेसिस ऑफ एनी फील्ड। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने डेटास को आपने ग्रुप नहीं किया है, तो सिंपली आपको ग्रुप करना है अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। देन आपको सेक्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे टेबुलर लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। उसके बाद आप फॉर्मेट फ्रॉम क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ स्टाइल्स एंड उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। Critical thinking, Varsha has to create a report from a query which she has generated. Is it possible to do so? अब वर्षा को एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है एक क्वेरी में से जो उसने खुद जनरेट की है। क्या ये पॉसिबल है, ये आपको बताना है। Now step 8 in the step next wizard will ask you to give a name to the next report that will be displayed at the top of report. Give a name and click on finish. The report appear as shown below. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपसे विजार्ड पूछेगा उस रिपोर्ट को एक नाम देने के लिए। ठीक है, आप फिर उसको नाम देंगे और फिर अपनी रिपोर्ट को आप फिनिश कर लेंगे, मतलब फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से अपीयर होगी। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट शुड यू डू टू प्रिंट सम टेबल्स इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको कुछ टेबल इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। तो you can print the report by clicking on the file tab and selecting print and then making required entries in the print backstage view. Now setting a relationship between tables. When we link one table to the other tables on the basis of primary key, it is called setting a relationship. Once we have defined a relationship between the tables, the data from both the tables can be used by queries and other database objects. A relationship works by matching a field with the same name in both tables. In most cases, these matching fields are the primary key from one table that uniquely identifies each record in a table and a foreign key in the other table. To create a relationship, follow the given steps. Step 1, create both the tables and open one of them in the datasheet view. Click on the database tools tab. Step 2, in the relationships group, click on the relationship button. The relationship window appears with the show table dialog box. Step 3, select a required table from the list. Click on add button to add in the relationship window. Similarly, add more tables to the relationship window as needed. Step 4, click the close button. Step 5, drag the primary key of one table, marks table and drop it over the primary key field in the section table student table. The edit relationships dialog box appears. Step 6, click the create button. You see a line linking the two tables. Step 7, click on the save button on the quick access toolbar to save the relationship. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं ताकि हम जो रिलेशनशिप है दो टेबल्स के बीच में वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको अगर दो टेबल्स को आपस में लिंक करना है या उनके डेटास को लिंक करना है या उनको मैच करना है या उनकी सिमिलरिटीज़ वगैरह दिखानी है, डिफरेंसेस दिखाने हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं।
एक रिलेशनशिप जो होता है ये आपके फील्ड्स को मैच करने में हेल्प करता है जो कि दोनों टेबल में सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बोथ टेबल्स को सबसे पहले क्रिएट करना होगा, फिर आपको उनमें से एक को ओपन करना होगा डेटा शीट व्यू में। उसके बाद आप क्लिक करेंगे डेटा शीट टूल टैब्स पे, फिर आप रिलेशनशिप ग्रुप्स में जाएंगे एंड क्लिक करेंगे रिलेशनशिप बटन को। रिलेशनशिप विंडो जो है अपीयर हो जाएगी जिसमें आपकी सेम टेबल जो है वो शो करेगी डायलॉग बॉक्स के साथ। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड टेबल को फ्रॉम द लिस्ट। इसके बाद आप ऐड बटन क्लिक करेंगे टू ऐड इन द रिलेशनशिप विंडो। सिमिलरली आप ऐड करेंगे मोर टेबल्स को जिनका रिलेशनशिप आप दिखाना चाहते हैं एज नीडेड। उसके बाद आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे एंड आप ड्रैग करेंगे प्राइमरी की को ऑफ वन टेबल एंड आप इसको ड्रॉप करेंगे ओवर द प्राइमरी की फील्ड इन द सेकेंड टेबल। इसके बाद आप के सामने एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, इसमें आप देखेंगे लाइन लिंकिंग टू टू टेबल्स। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द रिलेशनशिप। You should know a foreign key is a value in one table that must match with the primary key of another table. एक फॉरेन की जो होती है वो वैल्यू होती है एक टेबल की जो कि मैच होनी चाहिए प्राइमरी की के साथ दूसरी टेबल के। Now conceptual learning, Indian government recently started compiling the world's biggest ID database of the Indian citizens using methods that included eye scan, iris scan, find out more about this project. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपाइलिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का डेटाबेस माना जाता है जिसमें इंडियन सिटीजन्स को एक मेथड के थ्रू उनकी आईडीज़ रिकॉर्ड की गई थी। उनके आँख की जो पुतली है उसको स्कैन करके उनकी एक यूनिक डिटेल जो है वो ली गई थी और उसको असेंबल किया गया था। Now you should know if you want to modify the fields of the tables after creating relationship, then first you have to delete the relations between tables. To delete the relationship, simply click on the relationship link and press delete key. अगर आप अपनी fields को modify करना चाहते हैं अपने tables के after creating relationship, then आपको क्या करना पड़ेगा, एक relationship को delete करना पड़ेगा एक table से या उन दोनों table के बीच से। Tricky terms query, it is a database object that helps you to retrieve and view specific information from the tables in a database form. It is a database object that allows the user to add, update and edit data in a table one record at a time. Report, it is a way to organize and summarize data for viewing or printing. तो इस चैप्टर में हमने एसएस के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि एक डेटाबेस सिस्टम है। इसमें हमने जाना कि कैसे आप क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स और फॉर्म को अपने डेटाबेस में अपने टेबल में क्रिएट करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.